Okay, so this is another problem that we'll see. That is 1.10, right? You आप शायद देख रहे हैं. So what is the problem? A 400 mm diameter shaft is rotating at 200 rpm. So what is this? This is not a plate. Here is a shaft of diameter 200 and it is rotating with 200 rpm. So it is the speed of that shaft. Always remember. So what we require is velocity. So sure, we can determine the velocity by using this, right? When 200 rpm is rotating in a bearing length of 120 mm. So what is bearing length? So when we are using bearing, so bearing is used for the as a lubrication, or you can call as a some amount of suspension, right? So we are using as a bearing. So bearing length is nothing but what? Lubricating length, right? So 120 mm lubrication is provided to the particular shaft, right? So definitely 120 mm तक क्या रहेगा? Fluid का film रहेगा, right? So this is bearing length 120 mm. If the thickness of the oil film is 1.5 mm, so what is thickness? Oil film है, oil है, तो उसका thickness है 1.5 mm है. So what is this? 1.5. So we know this, right? And then the dynamic viscosity of the oil is 0.7 Newton second per meter square. So dynamic viscosity is mu is given 0.7 Newton second per meter square. It is not given in poise. अगर वो पॉइज में देते तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि कैलकुलेशन में हम ऐसे नहीं ले सकते. सो डिटरमाइन टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन इन द बेरिंग. सो व्हाट इज टॉर्क? फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज टॉर्क. Then power utilized in overcoming the viscous resistance. So what is power required to overcome the resistance? That is can be calculated. Power का formula क्या रहता है? 2 pi nt by 60, right? So and assume a linear velocity profile means what? The change in velocity is a linear one, right, with respect to the vertical distance or with respect to the that particular distance, right? So this is nothing but the problem. We will see it. Okay, so what is the problem? So they are given, right? So we can write it as a given data, right? Means there is one shaft whose diameter is 400 mm, right? So suppose you can consider as this shaft is there, जिसका diameter कितना है? 400 mm, right? Or definitely there is a bearing length. Bearing length is nothing but what? There is a lubrication is provided up to 120 mm length. So ये shaft के around that particular shaft there is an oil. So this is nothing but what? Called as the oil. So this particular length is what called as a bearing length, where the lubrication, or you can call it the suspension, it is provided. So that the shaft can move very easily, right? So this is nothing but the bearing length. We can, so there will be might be another component. This will be the another component. You can see another solid material, right? So this is a shaft, and around this particular shaft there is nothing but another circular part is there, right? So this is the what called is a diameter. So you can write down as a center. For this diameter is 400 mm, right? Then bearing length, so this will be 120 mm. आप शायद देख सकते हैं
राइट, 120 mm है, राइट। देन ये थिकनेस है, ऑयल फिल्म का जो थिकनेस है उसका भी वैल्यू उन्होंने दिया है, दैट इज 1.5 mm दिया है, राइट। तो हम गिवन डेटा लिख देते हैं। सो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इट इज़ 400 mm. So you have to convert it into meter. Then speed of the shaft, that is you can get the n. So it is given in terms of the rpm, 200 rpm. Then thickness of the oil film. So this could be the thickness. So this is the thickness, right? And this particular thickness, it is given in terms of the 1.5 mm. So you can write as a 1.5 into 10 raised to minus 3 meter. So this is the thickness. Then length of the bearing, that is 120 mm, that is 0.12 meter, right? So this is nothing but the bearing length. So this is very important. And the dynamic viscosity they have given, that is in terms of the 0.7 Newton second per meter square. So हमको क्या निकालना है, टॉर्क, और क्या निकालना है, पावर, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द ड्राइंग फॉर दिस। सो हमें म्यू का वैल्यू पता है लेकिन हमें टॉर्क वगैरह निकालने का, बट दिस इज द प्रॉब्लम इज मतलब ये प्रॉब्लम हम कौन से इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलरेडी वी हैव सीन, राइट, देयर इज़ एन ऑयल फिल्म, एक ऑयल फिल्म रहता है और दो प्लेट रहते हैं, ये फर्स्ट प्लेट रहेगा, ये सेकंड प्लेट रहेगा। अगर दो प्लेट हैं सो दो प्लेट शायद मूविंग रहेंगी, या शायद एक प्लेट मूविंग, एक प्लेट फिक्स रहेगा। दोनों के बीच में अगर ऑयल है, देन इफ सपोज इफ इट इज़ मूविंग विथ सम वेलोसिटी u, राइट, सपोज इफ इट इज़ फिक्स, अगर ये डिस्टेंस हमें पता है व्हाट इट इज़ dy, राइट, और इसका विस्कोसिटी म्यू है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम कहाँ जाता है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम व्हाट इज इक्वेशन, वी कैन राइट एज अ टाउ इज इक्वल टू म्यू du डिवाइडेड बाय dy. So this is problem on the Newton law of viscosity. Same when one thing is there, this is a one plate and this is another plate. मतलब ये सर्कुलर प्लेट है, उसके बाजू में मतलब ये रहेगा एक शाफ्ट का प्लेट है, तो उसके सिमिलरली, ओके, सो दिस इज अ शाफ्ट और उसके ऊपर ये क्या रहेगा, अनदर पार्ट रहेगा। दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है वहाँ क्या रहेगा, ऑयल रहेगा। तो दिस इज़ अ वन प्लेट, दिस इज़ द सेकेंड प्लेट, राइट, दोनों के बीच में ऑयल। तो ये भी प्रॉब्लम किसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, बाय मीन्स ऑफ द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इज अ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी प्रॉब्लम, राइट। सो हम क्या करेंगे, ये सर्कुलर है उसको हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, राइट। सो हाउ वी कैन कन्वर्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज द सरफेस एरिया, वी कैन कन्वर्ट इट, राइट। सो इट्स द सेम वे। सो what 1.5 is nothing but what a dy. So this is what distance between two plates. So don't take like this, मतलब ये सर्कुलर है तो इसका हम ऐसे बनाएंगे, और ये दूसरा है, ये अगला दूसरा पार्ट है, ये भी सर्कुलर है तो उसको भी हम एक प्लेट बनाएंगे, राइट। सो कैसे बना दी, मतलब शायद आप दे सकते हैं, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये है, लेकिन हमने ये सर्कल है, इसको हमने यहाँ तोड़ दिया और एक लाइन बना दी, ओके।
So this is nothing but the one circle, consider as a one circle. और हमने इसको क्या किया, ब्रेक किया है, राइट। यहाँ तक हमने ब्रेक किया और इसको ओपन कर दिया, राइट। तो ये एंड मतलब ये एंड रहेगा, ये एंड मतलब ये एंड रहेगा, राइट। सो इसका लेंथ कितना रहेगा आप थोड़ा देख सकते हैं। इसका जो लेंथ है वो इसका पेरीमीटर रहेगा, राइट। दैट इज नथिंग बट पाई इंटू डी। श्योर। सो ये हो गया। सपोज तो हम ऐसे इसको ऐसे बना देते हैं, राइट। इसका मतलब ये शाफ्ट है, ऐसा सोचो आप। सो ये क्या रहेगा, ऐसा शाफ्ट रहेगा। शाफ्ट को हमने बना दिया, राइट। तो उसके ये वाला अनदर पार्ट ये भी कैसा है, एज लाइक दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये जैसा पार्ट है ना वैसा ये मतलब शाफ्ट है और ये मतलब जो अराउंड वाला पार्ट है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, मतलब ये ऐसा रहेगा, राइट। हम देखो उसका जो डायमीटर है थोड़ा ज़्यादा है ऑलवेज, राइट। सो डेफिनेटली हम इसको भी क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, लेट इट बी जो भी है, इसको हम ऐसे बना देते हैं, राइट। और दोनों के बीच मतलब दिस दोनों के बीच में क्या है, ऑयल है। तो यह क्या रहेगा, फिर से ऑयल रह सकता है। तो मतलब दो प्लेट, ये शाफ्ट है, ये अनदर पार्ट है, दोनों के बीच में ऑयल है। सो दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे टी वाई, राइट। और जो भी शाफ्ट है तो हमने उन्होंने दिया है कि शाफ्ट इज रोटेटिंग एट 200 RPM। सपोज इफ यू कंसिडर लाइक ओके दिस इज ए शाफ्ट, सो यू कैन जस्ट रिवर्स इट। ये ऊपर ले लो, ये नीचे ले लो जो। सो इफ इट इज मूविंग, नो क्वेश्चंस, अब ऐसा मत समझो कि ये ऊपर है और ये नीचे है, ऐसा सोचो, राइट। सो इट इज मूविंग विथ सम एनर्जी that with it is rotating with 200 RPM, so we will convert in rotational speed into linear speed, so that will convert. Suppose this is a fix, so shaft is rotating, so this will be the fix. And okay, so for this equation particular process again you can apply this particular equations, right. So these are the two components. Definitely ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, लेकिन इसका जो थर्ड डायमेंशनल थर्ड भी एक क्या रहेगा, राइट। सो व्हाट इट इज, सो डेफिनेटली इसका लेंथ रहेगा, लेकिन नीचे में क्या रहेगा, ये वाला, राइट। मतलब ये ऑयल का फिल्म है कहाँ तक है, 120 mm बेरिंग लेंथ है, राइट। मतलब ये हमने लेंथ तो लिया, सो मतलब ये वाला लेंथ, राइट। ये लेंथ तो लिया, मतलब वहाँ तक तो डेफिनेटली क्या रहेगा, ऑयल तो रहेगा, लेकिन एक साइड रहेगी वहाँ तक 120 mm लेंथ के लिए पूरा से पूरा क्या रहेगा, ऑयल फिल्म रहेगा, राइट। सो डेफिनेटली सेम प्रॉब्लम यू कैन कन्वर्ट इन टू दी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आया क्या बोल रहे। सो डेफिनेटली हम जो भी इसका एरिया रहेगा, राइट, शायद हमें उसका एरिया तो पता होना चाहिए। सो दैट विल बी, सो इसका टोटल लेंथ रहेगा पाई डी, और ये वाला एज लाइक इस हम उसको क्या लेंगे, शाफ्ट लेते, और ये बाहर का एरिया रहेगा, राइट। सो यू कैन कॉल से कॉलर, ओके। सो इसका एरिया पाई डी, लेकिन हमें इसका डी तो दिया है और इसका लेंथ भी पता है, मतलब कहाँ तक है वो 120 mm, राइट। So it will be very easy to calculate the another value, right. So we'll move forward. So what you have to calculate the torque and calculate the power, right. So we have written the given data, right, everything is fine. So this length, it is very much important, is mu. Then now we can calculate. So this is rotating, right. So this component is rotating
we have what we make this arrangement like this, so definitely this will move, so we can convert, right? So important formula you just remember, that is nothing but what you can as a tangential velocity, what is called as a tangential velocity of shaft, मतलब हम इसको टेंजेंट निकालेंगे तो डेफिनेटली ये वेलोसिटी रहेगा उसका, राइट? इन लीनियर वेलोसिटी यू कैन कॉल द, so it will be calculated as pi dn divided by 60, right? So you can put the proper values. D is 0.4, n is 200, then 60. so हम इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो शायद हमें मिल जाएगा what we required, 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे 200 divided by 60, right? So 4.1887 मीटर पर सेकेंड. सो ये सबसे इम्पोर्टेंट आप हमेशा के लिए याद रखो कि दिस इज़ व्हाट रोटेशनल स्पीड. सो रोटेशनल स्पीड of any circular component converted into the linear speed by means of this particular formula. Always remember. So यहाँ का मिलेगा revolution per minute, पर यहाँ का मीटर है मीटर per second. मीटर is a length, so that's called the distance, right? So this is very important. So we will calculate that u that we require as a u. So हम यहाँ का u तो निकाल लिया, यहाँ का u है, फिर हम यहाँ बोलेंगे तो यहाँ के u की वैल्यू निकालें, राइट? सो वोट दिस इज नथिंग बट दी यू. लेकिन हमें क्या निकालना है? टॉर्क. टॉर्क का मतलब क्या रहता है? फोर्स इनटू रेडियस, राइट? मतलब टॉर्क कहाँ तक लगता है? इट इज़ ऑलवेज एक्टिंग ऑन दी सर्कुलर कंपोनेंट, ऑलवेज, राइट? तो हम सो फोर्स हमें चाहिए. सो ये तो शाफ्ट है, इसका रेडियस तो हमें पता है डेफिनेटली, लेकिन फोर्स चाहिए. तो फोर्स का वैल्यू मिलेगी, सो दैट इज टाउ. ये टाउ दिखा रहे थे हमें, म्यू तो दिया है, डी तो हम निकालेंगे, डी वाई तो पता है, टाउ में एफ रहेगा, फोर्स रहेगा, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? सो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, so we may write like this. We know that what we know, tau is equal to mu du by dy, राइट? सो यहाँ की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, राइट, सो टाउ इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई. सो हम एक की वैल्यू निकालेंगे, हम फोर्स को ऐसे रख देंगे. व्हाट इज एरिया? एरिया अंडर द शेयरिंग, राइट? सो एरिया अंडर द शेयरिंग मतलब क्या रहेगा? ये वाला सर्कुलर एरिया हम देख सकते हैं, सर्कुलर एरिया मतलब ये वाला जो टोटल एरिया है, मतलब यहाँ का डेफिनेटली अगर यहाँ तक 120 mm है, सो डेफिनेटली यहाँ भी 120 mm रहेगा. सो लेंथ इसका 120 mm है, लेकिन वो सर्कल क्या है? इसका लेंथ पाई डी इंटू एल. समझ में आ रहा है ना? सो पाई डी इंटू एल, म्यू इज गिवन 0.7 डी यू. व्हाट इज डी यू? दो प्लेट का डिफरेंस इन द वेलोसिटी, राइट? क्या है? एक का वेलोसिटी तो दिया है उन्होंने, तो हमने निकाला है 4.1877, और दूसरे का 0 है, एज इट इज़ फिक्स. सो ये फिक्स है, ये मूविंग है, सो हम इसको निकालेंगे 4.1887 डिवाइडेड बाय व्हाट इज डी बाय? डिस्टेंस बिटवीन दोनों के बीच का डिस्टेंस. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ 1.5 10⁻³ सो यू पुट द वैल्यू हियर. पाई तो पाई रहेगा, डी का मतलब रहेगा 0.4, राइट? सो डी का वैल्यू डेफिनेटली क्या रहेगा? 0.4, मतलब हम वहाँ से ले रहे हैं, राइट? देन एल मतलब 120 mm, सो दैट इज 1.2 इज इक्वल टू 0.7, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, 0.7 इंटू
is same 1887 1.5 into 10 raised to minus 3 अगर हम इसको निकालेंगे सो विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ। तो हम थोड़ा कैलकुलेट कर दे राइट। we have that answer but we just calculate on whether it is correct or not divided by 1.5 into 10 raised to minus 3 fine। so इसका वैल्यू into pi into 0.4 into 0.12 so 294 see okay so what we are getting is a 294.765 तो हम इसको बदल सकते हैं सो इट विल बी नो डाउट। सो हर एक का वैल्यू हमने एम केस में लिया ऐसे सेम यूनिट का सिस्टम होना चाहिए। सो this is the force will be exerted by this rotating shaft over this particular oil right। so एक बात हम ध्यान में रखो why we are considering pi d हमने ये ही d क्यों लिया हम शायद ये भी d ले सकते थे लेना चाहिए था लेकिन अब याद या ध्यान में रखो ये दो प्लेट है ये स्टेशनरी तो ये क्या है मूविंग प्लेट है। सो दिस विल एक्सर्ट अ shear फोर्स ओवर दिस तो हमें ये एरिया लेना पड़ेगा समझ में आ रहा है ना। तो इस दोनों के बीच में ये रोटेटिंग है ये फिक्स है सो ये रोटेट होगा इसका मतलब दिस विल एक्सर्ट अ प्रेशर फोर्स और फोर्स shear फोर्स ओवर दिस पर्टिकुलर ऑयल सो ये इधर उल्टा रहेगा राइट। सो देयर फॉर वी आर कंसिडरिंग दिस अगर सपोज ये शाफ्ट क्या है फिक्स है और ये रोटेट हो रहा है तो विल टेक पाई डी डी का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी इंटू दिस लेंथ राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा प्रॉब्लम में थोड़ा ध्यान भी दो क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट। मतलब पाई डी अब दोनों में ले सकते हैं लेकिन जो भी रोटेट है जो भी मूविंग है दैट विल एक्सर्ट अ प्रेशर फोर्स। सो हमें मिला है एफ का वैल्यू तो एफ का वैल्यू मिलने के बाद डेफिनेटली विल गो फॉर दी torque right। so we'll calculate as a viscous torque right। so we can calculate as a viscous torque so that is nothing but force what we calculated into radius so it is nothing but d by 2 तो हम निकाल सकते हैं। so force का वैल्यू you can write it as it is 765 तो हम शायद इसको बदल भी सकते हैं 5 इधर है तो डेफिनेटली इसको 7 बनाएंगे अगर ये 5 से ज़्यादा है 5 और 5 से ज़्यादा है तो इसको 8 भी बना सकते हैं राइट। सो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं तो आप यू कैन राइट इट एज इट इज़ नो डाउट डी बाई 2 मतलब 0.4 डिवाइडेड बाई 2। सो अगर इसको वैल्यू निकालेंगे तो शायद आप ही भी कैलकुलेट करो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा पता नहीं लेकिन हमें इसका कंसेप्ट तो पता होना चाहिए राइट। सो दैट विल बी वेरी यूज़फुल। सो यही एफएम है तो हम इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है राइट। सो दिस इज नथिंग बट द टॉर्क अगर टॉर्क का यूनिट क्या रहेगा न्यूटन मीटर रहेगा राइट। सो दिस इज नथिंग बट द विस्कस टॉर्क वी आर कैलकुलेटेड as you can call it the torque you can say। so this much amount of torque will be exerted by the rotating component that force on the oil or the that nothing but the power in terms of the torque right। now you can calculate the power utilized right to overcome that friction because of the viscosity right or that resistance created by the force that oil right। so power utilized is P same formula you have to remember always 2 pi n T divided by
60, right? So this will be in terms of the, sorry, this is not in terms of the kilowatt, it is only in terms of the, हम नीचे अगर 1000 लेते हैं तो क्या रहेगा, किलोवाट रहेगा। तो इसमें ये क्या वैल्यू क्या रहनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर होनी चाहिए बस। सो ये समझ में, आप ध्यान में रखो, ऑलवेज पावर कैन बी कैलकुलेटेड 2.60 एन आरपीएम में रहेगा, ये आरपीएम में रहेगा, इसलिए इसको डिवाइड बाय 60 तो किया है, राइट। सो ये थोड़ा ध्यान में रखो। सो इसका टर्म्स ऑफ द वैट, सो यू कैन पुट दिस वैल्यू 2 पाई इंटू 200 इंटू 58.953 डिवाइडेड बाय 60। हम इसको निकाल देते हैं, 200 2 पाई divided by 60. So this is 1 2 3 4, right? 1 2 3 4.708 वैट, और सीधा हम डायरेक्टली वैट FW भी लिख सकते हैं। सो ये यू कैन कन्वर्ट इनटू टर्म्स ऑफ दी 234708 किलोवाट। सो दिस विल यू कैन राइट एज अ 1 पॉइंट, अगर 0.1 करेंगे तो डेफिनेटली आप इतना भी लिख सकते हैं, 2347, नो क्वेश्चन, राइट, किलो watt, right? So this is nothing but the power utilized in overcoming the particular friction, right? So this is nothing but the problem. So this is a very interesting problem. So many problems are there, so we'll see, right? Okay, thank you. Okay, so today we'll see the example number 1.8. So this is some different example, कुछ अलग एग्जाम्पल है वो। सो क्या एग्जाम्पल हम देख लेते रहे। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो ओवर अ प्लेट इज पैराबोलिक, राइट। सो आपको एक चीज़ याद में रखना पड़ेगी कि देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू कांस्टेंट, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो वेलोसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द प्लेट, राइट। सो हमें पता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में दो प्लेट होती है, दोनों प्लेट के बीच में ऑयल फिल्म रहती है, फ्लूइड का फिल्म रहता है। एक प्लेट नॉर्मली फिक्स रहता है, एक मूविंग रहता है। मतलब फिक्स प्लेट से मूविंग प्लेट तक वेलोसिटी सेम नहीं है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, राइट। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सो दैट इज़ पैराबोलिक, राइट। वो डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब जहाँ फिक्स है वहाँ का कुछ अलग वेलोसिटी है, सेंटर में अलग वेलोसिटी है, और जो भी प्लेट मूविंग है वहाँ वेलोसिटी अलग है। तो इसका रिलेशन कैसे है, तो दैट विल बी द पैराबोलिक, राइट। सो दिस इज velocity distribution is parabolic with a vertex. So vertex is nothing but you can consider as a y-axis, vertical, right, with vertex 30 centimeter from the plate. प्लेट से ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ पैराबोलिक, वेयर द वेलोसिटी इज़ 180 सेंटीमीटर पर सेकंड, जहाँ वेलोसिटी कितने 180 180 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब प्लेट से वर्टिकल डायरेक्शन 30 सेंटीमीटर में एक वेलोसिटी है वो 180 है, राइट। इफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज़ 0.9 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, अगर जो भी फ्लूइड है इसकी विस्कोसिटी 0.9 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो व्हाट इज़ ग्रेडियंट, सो आपको हमेशा के लिए ये ध्यान में रखना पड़ेगा, व्हेन इट इज़ ग्रेडियंट सो इट इज़ ratio of du by dy, temperature gradient, right, velocity gradient, right. So that will be somewhat difference, right. So we have to calculate the velocity gradient and shear stresses means du by dy आपको निकालने का है, टाउ निकालने का है, at a distance 0 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेट। मतलब प्लेट से
ऊपर 0 सेंटीमीटर में कितना ग्रेडियंट है, स्ट्रेस है 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर में, राइट। सो ये वही प्रॉब्लम है, तो हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट दिस, राइट। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो यू जस्ट कीप कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ओके, सो हमने प्रॉब्लम तो देखा कि देर इज नथिंग बट देर इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। So what is exactly that velocity distribution? So we'll see this one. Suppose what is exactly the diagrammatic representation of NLV, that is Newton law of viscosity, right? So अब थोड़ा ध्यान से देखो, राइट। सो ये दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच में क्या है, तो फ्लूइड का फिल्म है, राइट। सो कुछ तो डेफिनेटली इफ इट इज फ्लूइड फिल्म देन देर विल बी पैरामीटर विल बी विस्कोसिटी, सो दैट इज गिवन हियर। तो ये एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, शायद ये प्लेट भी मूव सकता है, मतलब ये दोनों प्लेट का अगर वेलोसिटी अगर सेम है, सो डेफिनेटली देर विल बी नो एनी shearing will be there, right, or there is no any external force will be applied over this particular fluid film, right. there should be a relative motion between these two, मतलब दोनों का velocity अलग होना चाहिए, तभी क्या होगा, the shearing force will be exerted over the fluid film. So this is very important. So exactly it what normally one of the plate is fixed. This is not ideal condition, a real condition, sorry. So this will be, you can consider as it is fixed. So as it is fixed, then what is the velocity of this, you can consider as a 0, and it is moving with some velocity, so you can consider as a u2 is equal to u. So दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी यू विल गेट, एंड दिस इज अ वर्टिकल डिस्टेंस, normally you can consider the y, right. So we'll go, it is y. Then so what is velocity distribution, मतलब ये जो लेयर आपको दिया है, सपोज ये प्लेट है, इस प्लेट से कॉन्टैक्ट में, राइट, दैट वन ऑफ द लेयर इज स्टिक टू द पर्टिकुलर सरफेस, जो भी इसके नज़दीक है उसका वेलोसिटी और उसके ऊपर वाले का वेलोसिटी एक रहेगा, नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि दिस इज मूविंग, सो इसका वेलोसिटी और इसके कांटेक्ट में रहने वाला जो भी है उसका वेलोसिटी डेफिनेटली सेम रहेगा, दिस इज अजम्पशन। लेकिन जैसे हम नीचे नीचे आएंगे, राइट, ये लेयर ये लेयर ये लेयर ये लेयर, तो डेफिनेटली इसका वेलोसिटी इसके नज़दीक में है उसका रहेगा, इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी अलग रहेगा, उसके नीचे वाला लेयर है उसका वेलोसिटी अलग रहेगा, नीचे वाला लेयर है उसका वेलोसिटी अलग रहेगा। तो नॉर्मली क्या होगा, इफ़ इट इज़ मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, सो डेफिनेटली इससे कॉन्टैक्ट में रहने वाले का वेलोसिटी भी उतना ही रहेगा, सो वी कंसिडरिंग एजम्पशन दैट, राइट। लेकिन उसके नीचे वाले का वेलोसिटी उतना नहीं रहेगा, दैट विल बी लेस देन 10 ऑलवेज, राइट, बिकॉज इट इज़ अवे, इट इज़ नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद दिस, बिकॉज इसकी वजह से वो नीचे वाला लेयर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, राइट। सो डेफिनेटली, सो व्हाट इज, देर इज नो इन कांस्टेंट वेलोसिटी, देर विल बी वेलोसिटी इज चेंजिंग, राइट, सो देर विल इज सम डिस्ट्रीब्यूशन इज विल बी देयर। सो इसका वेलोसिटी ज़्यादा इससे, इसका ज़्यादा इससे, इसका ज़्यादा इससे, राइट। सो डेफिनेटली देर विल बी सम रिलेशन is present from velocity at this layer and this layer. So that relation is that given in the problem, that is parabolic. मतलब जो भी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है, पैराबोलिक वेरिएशन से चेंज हो रहा है, इट मे बी लीनियरली चेंज हो रहा है, राइट, और कुछ अलग रहेगा, कुछ इक्वेशन दिया है तो उसके हिसाब से वो चेंज हो सकता है, राइट। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो इसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ इट इज़ लीनियर, राइट, मतलब ये लीनियरली चेंज हो रहा है, तो हमने एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था, राइट, सो आप शायद देख सकते हैं,
इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालेंगे. सपोज इफ it is u on y axis, we will be mounting u, and on x axis we will mounting y as a distance, right? So velocity distribution will be like this. So this is nothing but the velocity distribution. मतलब ये वाला, ये लाइन है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, इट इज स्ट्रेट लाइन, सो इट इज लीनियर. मतलब जैसे y चेंज होगा, y आपको अब बढ़ाएंगे डेफिनेटली, उसके हिसाब से वेलोसिटी बढ़ेगा. मतलब y का वैल्यू 0 है, मतलब इससे नज़दीक है तो वेलोसिटी 0 रहेगा. लेकिन y का वैल्यू हमने बढ़ा दिया तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा. और सपोज़ अगर ये हमारा y इज इक्वल टू 30 mm है, 30 सेंटीमीटर है, तो वेलोसिटी कितना रहेगा, 180 रहेगा. सो ऑलरेडी दिया है. तो दिस इज़ वॉट variation, right? So this is what the distribution means, linearly distributed, right? And in the given problem, what they have given that particular distribution, it is parabolic, right? So आप इसको थोड़ा ध्यान में रखो. हमें उन्होंने क्या बोला है कि जो भी मैंने प्रॉब्लम दिया है उसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट लीनियर, इट इज समवॉट पैराबोलिक, लाइक दिस, राइट? सो डेफिनेटली जैसे हम y बढ़ाएंगे u का वैल्यू भी पैराबोलिक रिलेशन से बढ़ेगा. सो डेफिनेटली हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं. ये सिर्फ एरो है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड दिखाई देता है. सो हियर डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर, you can write as a linear, and this particular distribution it is parabolic, right? So हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, राइट? सो डेफिनेटली अगर ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है तो इसका हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना पड़ेगा. डायग्रामेटिकली ऐसा है, लेकिन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ लीनियरिटी, मतलब ये लीनियरली चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम कैसे निकालते, आप शायद देख सकते हैं, राइट? सो इसके लिए मैं थोड़ा अलग सा एक ड्राइंग निकालता हूँ. तो सपोज दिस इज एनी एक्सिस, यू मे बी कंफ्यूज लाइक दिस. सो मैं एक्स एक्सिस को कुछ अलग नाम दे रहा हूँ, इफ इट इज के, एंड वाई एक्सिस को मैं शायद बोल रहा हूँ जेड बोल रहा हूँ, राइट? सो इफ इट इज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका इक्वेशन? क्या रहेगा, z इज इक्वल टू सी एज अ कांस्टेंट k. मतलब जैसे k की वैल्यू हम बढ़ाएंगे और c का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, उसके हिसाब से हम z की वैल्यू मिल सकती हैं. समझ में? ये सबसे इम्पोर्टेंट है. सो यू कैन गो इन दिस वे लाइक दिस. सो हम यही एक्सेस लेते हैं, दोनों एक्सेस. तो हम क्या करेंगे, हमने x को बोला है y और इसको बोला है u, राइट? सो इफ इट इज दिस, ये ऐसा है, डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर, देन इस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, u इज y एक्सिस, l y, एंड व्हाट इज l, इट इज कांस्टेंट वैल्यू, इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. मतलब इसको हम सीधी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. मतलब जैसे जैसे y चेंज होगा वैसे वैसे u की वैल्यू चेंज होगी. तो इधर दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे y चेंज होगा y बढ़ेगा, y ऊपर जाएंगे वैसे वैसे u की वैल्यू भी बढ़ जाएगी. जैसे जैसे y की वैल्यू कम होगी, ऊपर से हम नीचे आएंगे तो u की वैल्यू भी कम होगी, राइट? सो इसका मतलब ये रिलेशन बराबर है इफ़ इट इज़ लीनियर, राइट? सो हम जो हमारा अभी टारगेट है, अभी इसमें और एक क्वेश्चन है तो हम उसको निकाल देंगे. इफ इट इज लाइक दिस, ये ऐसा है, राइट? इफ इट इज y देन u है,
तो हम इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, मतलब दिस इज कॉल्ड एज ए इंटरसेप्ट। हम इस इंटरसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, लेट इट बी एम, हम बोलेंगे ये में। तो इसका रिलेशंस हम निकालते हैं, हमने मैथमेटिक्स में दिया है, नहीं देख अगर याद में तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। यू का वैल्यू कैसे रहेगा, कांस्टेंट आप बोले एल वाई प्लस एम। सो ये इसका वैल्यू रहता है, राइट। मतलब एक्स वाई एक्स लेंगे तो शायद आपको पता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर यू का वैल्यू निकालने का है तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा, एल वाई, हमने दिया है एल वाई, लेकिन ये इंटरसेप्ट उधर ऐड करना पड़ेगा, दैट इज प्लस एम। तो इसका रिलेशन ये रहेगा, समझ में आया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो if in the problem, if they were given the equation, if they told that distribution is linear, then what will the equation that represent the linear equation, that is u is equal to, it is u, it is not anything else, u is equal to एल वाई प्लस एम। आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है, आप एल की जगह दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो एल एम आर कांस्टेंट, राइट, ये हुआ लीनियर के लिए। तो डेफिनेटली जैसे हम वाई की वैल्यू चेंज करेंगे और एल और एम की वैल्यू हमें पता है, तो हमें यू की वैल्यू एब्सोल्युटली मिल जाएगी, राइट। लेकिन अगर ये पैराबोलिक है, राइट, अगर ये पैराबोलिक इक्वेशन है, मतलब हमारा लीनियर तो नहीं है, तो ये नहीं रहेगा। इफ इट इज़ पैराबोलिक, डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक, इट इज़ नॉट चेंजिंग लीनियरली, इट इज़ चेंजिंग पैराबोलिकली, राइट। सो उसका इक्वेशन हमें क्या रहेगा, सो u इज इक्वल टू, इट इज़ अ सब हायर ऑर्डर है, सो सेकेंड ऑर्डर है, सो एल वाई स्क्वेयर प्लस एम वाई प्लस एन। सो ये इक्वेशन है पैराबोलिक का, राइट। सो हमें इसके याद रखना पड़ेगा, राइट। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो हम, अगर प्रॉब्लम आता है, राइट, एग्ज़ाम की बात तो छोड़ो, अगर कभी आपको समझ में बोला, अगर किसी ने बोला कि चलो बताओ व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट, इफ इट इज़ इन दिस वे, सो नॉर्मली इट इज विल बी एल वाई स्क्वायर प्लस एम वाई प्लस एन, एल एम एन आर नथिंग बट व्हाट, कांस्टेंट, समझ में आया। सो दिस आर नथिंग बट दी कांस्टेंट वैल्यू, राइट। सो इसी में अगर हम y की वैल्यू चेंज कर दें, सो डेफिनेटली विल गेट द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u। मतलब यहाँ तो y ज़ीरो रहेगा, तो ज़ीरो रखेंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। यहाँ तो वैल्यू सपोज 2 है, तो 2 रखेंगे तो मिलेगा। लेकिन मतलब हमने उन्हें दिया है कि 0 पे निकालो, 50 सेंटीमीटर पे निकालो और 30 सेंटीमीटर पे निकालो कि u का वैल्यू कितना है और या टाउ का वैल्यू कितना है। तो डेफिनेटली ये अगर चेंज कर दे तो डेफिनेटली आपको मिल सकता है, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप शायद अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सो नाउ we'll move towards the particular problem. Okay, so this is nothing but the particular velocity distribution it is given. So what we have seen it is this was the drawing, right? So instead of u here, u is the magnitude of velocity, right? So it is in the suppose vertical distance, so you can just reverse it, right? यहाँ आप शायद ये इक्वेशन नहीं चेंज होगा, ये दोनों इक्वेशन का काफ़ी अलग रहेगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ हियर वाई यू मे राइट एज अ यू एंड इंस्टेड ऑफ वाई यू कैन राइट एज अ वाई। सो डेफिनेटली ये आपको वर्टिकल हाइट मिलेगी, तो इट विल बी वेरी इजी। सो हियर इंस्टेड ऑफ वाई यू कैन राइट एज अ यू, हियर इंस्टेड ऑफ यू कैन राइट एज अ वाई। सो डेफिनेटली आपको वर्टिकल डिस्टेंस मिल सकता है, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो डेफिनेटली नाउ वील मूव, सो इंस्टेड ऑफ वाई वी आर राइटिंग हियर एज ए यू एज a velocity, and where you can write as a y, so it will be very easy. So this is a y distance. So what is the distance given in the problem?
that it has a 30 centimeter. So at 30 centimeter this is the magnitude, so that can be, it will be very easy. Suppose y का डिस्टेंस यहाँ है तो डेफिनेटली यहाँ का मैग्नीट्यूड इधर मिलेगा, मतलब ये उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, राइट. सो इट विल बी वेरी इजी. सो at 30 centimeter what they have given, the velocity magnitude is 180 centimeter per second, ये right. And this is nothing but the distribution in terms of the parabolic. तो इसका रिलेशंस तो हमें पता है. So what is the relation for this? So that it is u is equal to L y square plus my plus n, where L, m, n are the constant, right. So this is the equations for this, right. And they have calculated, they have given what they have given. Another thing is, so we are calculated, or we know this, we can write as a, we know this one. So velocity it is given at this particular point, means you can write as a at y equal to 30 centimeter, what is the velocity? 180 centimeter per second, राइट. सो ये इसका क्या रहेगा, डेफिनेट वेलोसिटी रहेगा कि 30 सेंटीमीटर है, ये उन्होंने दिए हैं. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड shear stresses at different particular points. So we'll see in the next way, right. So before this, if you change the value of y, you will get the value of u. लेकिन हम डायरेक्टली वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास एल एम एन की वैल्यू नहीं है, तो वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट आपको निकालने का है. तो वो कांस्टेंट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द बाउंड्री कंडीशन. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. बाउंड्री कंडीशंस का मतलब वो फिक्स रहता है, मतलब वो रेफरेंस वैल्यूज हैं जो चेंज नहीं होगा, राइट. दैट विल बी, यू कैन कंसीडर अजम्पशंस. सो विल सी व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशंस. सो बाउंड्री कंडीशंस वी कैन राइट एज अ, बाउंड्री का मतलब है एंड कंडीशन, राइट. बाउंड्री कंडीशंस मतलब ये अगर हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड देयर, व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशन, दिस एंड दिस. तो इसका नॉर्मली इक्वेशन ऐसा रहेगा, तो हम शायद देख लेते हैं. सो उसका ड्राइंग ऐसा रहेगा, राइट. सो बाउंड्री का मतलब क्या रहेगा, ये वाला और ये वाला, जहाँ की वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जहाँ की वैल्यू हमें पता है, वी कैन अज्यूम इट, राइट. सो ये पोर्शन एंड ये पोर्शन हमें पता है, यहाँ की वैल्यू क्या है, यहाँ की वैल्यू क्या है, लेकिन सेंटर में क्या हमें पता नहीं है. तो उन्होंने दिया है ना 30 सेंटीमीटर पे इतना इतना वैल्यू, सो वी कैन यूज एट एज अ बाउंड्री कंडीशन. सो विल गो boundary conditions. So there, what is the first boundary conditions? So always you have to remember, right. So boundary condition is first one, what is, at y is equal to 0, what will be the u. अब बता सकते, अगर y का वैल्यू 0 है, मतलब अगर ये प्लेट है, हम इधर भी निकालते हैं, शायद आपको जल्दी समझ आएगा. ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, दोनों के बीच में क्या है, ऑयल है, और ये फिक्स है, और ये है y का डिस्टेंस रहेगा शायद. मतलब y का वैल्यू 0 है, मतलब ये ऐसे निकालेंगे हम, इट इज़ u, इट इज़ y, राइट. सो बताओ y का वैल्यू 0 है, मतलब ये प्लेट इधर है, शायद हम ये वाला इधर ये कर सकते हैं, ये सब सम सेक्शन इज देयर. अगर y का वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ से वो 0 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये वैल्यू u का है, तो y का वैल्यू अगर 0 है तो u का वैल्यू कितना रहेगा, 0 ही रहेगा. क्यों रहेगा, क्योंकि इस सरफेस के कांटेक्ट में जो भी फ्लूइड का फिल्म है वो मूव नहीं होगा. व्हाई इट इज स्टिक टू द पर्टिकुलर सरफेस,
मतलब ये सरफेस ही मूव नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली वो फ्लूइड जो स्टिक है उसको मतलब चिपक गया है, वो फ्लूइड भी मूव नहीं होगा, तो उसका वैल्यू 0 है। ये प्रेडिक्ट, ये एजम्पशन है, इट इज़ कंडीशन, वी आर कंसिडरिंग एज ए आइडियल कंडीशन, राइट। सो ये एक बाउंड्री कंडीशन, तो हमें पता है 0 रहेगा तो वेलोसिटी भी 0 है। अगर प्रॉब्लम में वो देते हैं कि ओके एट this surface which is fixed, the velocity is normally 1 meter per second, so we can get as a 1 meter per second, right? This is the first boundary condition. The second, what they have given in the second, they have given at y is equal to 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो यू का वैल्यू उन्होंने दिया है दैट इज 180 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। कितना है उन्होंने दिया, हमने कुछ अलग तो नहीं लिया। सो दिस इज फर्स्ट, राइट। ये सेकंड है, तो डेफिनेटली तो और एक बाउंड्री कंडीशन लगेगी, मतलब जितना ऑर्डर रहेगा वो सेकंड ऑर्डर है, तो 3 बाउंड्री कंडीशंस लगेगी। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब इफ़ इट इज़ लीनियर, तो सिर्फ 2 बाउंड्री कंडीशंस काफ़ी है। मतलब अगर लीनियर इक्वेशन है, इफ़ इट इज़ u इज इक्वल टू एल वाई प्लस एम, देन 2 आर सफिशिएंट, बिकॉज 2 कांस्टेंट है, यहाँ तो 3 कांस्टेंट है, 1 2 3, 3 कांस्टेंट अगर आपको निकालने का है तो 3 इक्वेशंस, 3 बाउंड्री कंडीशंस चाहिए, तब भी आप निकाल सकते हैं, राइट। और थर्ड बाउंड्री कंडीशंस का है कि एट ये आप थोड़ा लिखना पड़ेगा, राइट, 30 सेंटीमीटर change in velocity with respect to y that is equal to 0। सो ये आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एट y इज इक्वल टू 30, ये 30 पे चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब स्लाइड चेंज भी किया तो डेफिनेटली वहाँ का वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 रहेगा, मतलब उधर चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तो भी ग्रेडियंट 0 रहेगा, यहाँ भी ग्रेडियंट 0 है, लेकिन जो चेंज हो रहा है ना वो इधर है, मतलब यहाँ का 0 है, यहाँ का 180 है। सो 180 का अगर आप डेरिवेटिव लेते तो हमने दिया ना y इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, u का वैल्यू 180 है, तो हम इसका ही डेरिवेटिव लेते हैं du/dy, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहेगा, राइट। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमें उधर पता है 30 सेंटीमीटर, अगर एग्जैक्ट वैल्यू का वेरिएशन हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो 0 रहेगा, नो चेंज, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द वेरी इंपॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशन। सो बाय यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट, ये तीनों का यूज़ करके हम एलिमेंट की वैल्यू निकाल देते, और एलिमेंट की वैल्यू निकालने के बाद आपका प्रॉब्लम सबसे इजी हो जाएगा, राइट। सो विल गो, सो पहले हम क्या रखते कि जो भी हमारे इक्वेशंस है, हम थोड़ा इसको ना एक इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, तो इक्वेशन 1 में फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन रखते हैं, राइट। सो एट इक्वेशन 1 we are putting this particular boundary condition in equation 1। so what is equation 1, हम लिखते हैं ly² प्लस my प्लस n। तो यहाँ हमने लिखा u का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो कितना रहेगा, u का वैल्यू 0 इज इक्वल टू L0² प्लस m0 प्लस n, मतलब n का वैल्यू भी कितना आएगा, 0 आएगा। मिला, एक कांस्टेंट तो मिल गया, राइट। दिस इज फर्स्ट, हम इधर ही लिखते ताकि हमें थोड़ा पेज भी मिल जाए, राइट। ये एक अभी कंसिडरिंग द सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस, राइट। नाउ वी गो फॉर द, शायद आप ऐसा मत करो, एरो मैं सिर्फ समझने के लिए एरो कर रहा हूँ, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है तो इसका यूज़ हम इधर करेंगे। तो ये वैल्यू हम उसमें रख देते, राइट। सो instead, okay, you can consider as in 30 centimeter also, or you can convert in terms of the meter also, right? Okay, so by using the second boundary conditions, so this is the second boundary conditions, this is an arrow,
So just put the equations, right? What the equations we have, that u is equal to ly plus my plus n. So यहाँ का वैल्यू u का वैल्यू आप 180 रखो, y का वैल्यू आप रखो, तो शायद आप मीटर में ले सकते हैं, कन्वर्ट करके ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक इट एज आर, यू विल टेक इट इन टर्म्स ऑफ द सेंटीमीटर ओनली. सो यहाँ का वैल्यू हमने 180 रखा, एल वाई का वैल्यू हमने 30 रखा, एम 30, एन का वैल्यू तो हमें पता है 0 है, राइट. सो ये आपको इक्वेशन मिलेगा. मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा इक्वेशन, 180 प्लस 900 एल प्लस 30 एम. सो वी विल गिव इट एज अ equation number 2. So this is second boundary conditions. Now this is arrow shown, we are going for the third boundary conditions, right? So third में क्या दिया देखो, du by dy 0 है और y is equal to 30 सेंटीमीटर है. सो हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशंस हमारे पास हैं इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो du by dy हमने लिया, सो एल वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, सो 2ly प्लस एम, एन का वैल्यू तो 0 है, तो कॉन्स्टेंट दिए, तो डी बाई डी वाई का 0 रहेंगे, एम का वैल्यू 30, सॉरी वाई का वैल्यू 30. सो इसका इक्वेशन मिला 60l प्लस एम. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. मतलब 2 मिला, मतलब जो भी बाउंड्री कंडीशंस हैं वैसे ही रख देंगे उधर, राइट. और रखने के बाद हमें ये दो इक्वेशन, ये इक्वेशन से एक मिल रहे हैं और ये सेकेंड इक्वेशन. सो यहाँ देखो एल एन एम अननोन है, यहाँ भी क्या है एल एन एम अननोन है. सो ये दो इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते. तो आप ये कर सकते हैं m इज इक्वल टू -60l, इसको इधर लेंगे, -60l है तो हम m में -60l रख के आपको वैल्यू l की मिलेगी. फिर l का वैल्यू मिलने के बाद आप इधर डालो या इधर डालो तो आपको m की मिलेगी. तो इसके बाद आपको l और m की वैल्यू मिल रही है. l इज इक्वल टू -0.2, m इज इक्वल टू 12. एंड वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू तो 0 है तो उसका वैल्यू हमने निकाला है 0. अब ये तीनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो इधर एल एम एन का वैल्यू रखो, फिर से आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, u इज इक्वल टू -0.2 वाई स्क्वायर प्लस 12y एंड n की वैल्यू तो 0 है. सो ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, राइट. सो आप थोड़ा ध्यान से देखो. और ये इक्वेशन मिलने की मीन्स दिस इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो पैटर्न चल रहा है मतलब दिखाई दे रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस. मतलब एक आपको y की वैल्यू कोई भी डालो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी. सो दैट इज नथिंग बट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, द वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू चाहिए. सो देखो अब वेलोसिटी ग्रेडियंट मुझे चाहिए, व्हाट इज़ वेलोसिटी ग्रेडियंट, डी यू बाई डी वाई. तो मेरा इक्वेशन ऐसा नहीं है, मेरे पास तो ये इक्वेशन है, u इज इक्वल टू, सो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिलेगा डी यू बाई डी वाई. सो डेरिवेटिव लिया आपने, डी यू बाई डी वाई का डेरिवेटिव ये 0.2 वाई स्क्वायर है मतलब 2y, 0.2 इंटू 2, 0.4 वाई प्लस 12, माइनस साइन इधर है मैं इधर है. तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर इक्वेशन है. जो फिर से हम इधर कोई मार्किंग कर दे तो ये डी यू बाई डी वाई, अगर y का वैल्यू आप कुछ भी रखो आपको वैल्यू डी बाई डी वाई की मिलेगी. तो उन्होंने बोला है क्या चाहिए हमें, डी यू बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर चाहिए. तो y 0 सेंटीमीटर मतलब इसी इक्वेशन में 0 हमने रखा तो मिला वैल्यू कितना है 12. लेकिन इसका यूनिट क्या रहेगा 1 पर सेकंड. मतलब आप देख सकते हैं ये u है, u का यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड और इसका यूनिट रहेगा मीटर. सो मीटर मीटर कैंसिल तो 1 बाई सेकेंड, सो 1 बाई सेकेंड, राइट. सो मिला एक. नेक्स्ट दिस विल बी द सेकेंड, राइट. सो इन दिस सेकेंड डी यू बाई डी वाई वाई इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. सिर्फ वाई 15 का वैल्यू रखो इधर, 15 इंटू 4 6, 12 माइनस 6, 6 1 पर सेकेंड, तो सेकेंड. And fourth one, we can write it slowly, d by d by y is equal to 30 centimeter. So 0.4 into 30 plus 12, 30 into 4 12 minus 12 plus 12, that is 0 1 by second. So ये मिला velocity gradient. मतलब जब भी वैल्यू 30 सेंटीमीटर रहेगा देर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, इट विल बी कांस्टेंट वैल्यू, राइट. नाउ व्हाट वी रिक्वायर्ड इट इज shear stress.
क्या चाहिए हमें, दिखाई दे रहा है ना, हमें क्या चाहिए, शियर स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए। तो व्हाट इज शियर स्ट्रेस, टाउ। हाउ वी कैन कैलकुलेट, म्यू डी बाई डी वाई। तो म्यू का वैल्यू उन्होंने दिया है तो हम इधर लिखते थे 0.9 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये हमने दिया है उन्होंने प्रॉब्लम में, तो हम इधर लिख देते फॉर रेफरेंस। सो हमें ये फॉलोइंग है, टाउ चाहिए, म्यू पर म्यू कांस्टेंट रहेगा, वो चाहे तो फ्लूइड का थिकनेस कितना भी हो, लेकिन म्यू का वैल्यू चेंज होता है ऐसा प्रॉब्लम में नहीं बताया, बोलिए एज्यूम इट एज ए कांस्टेंट। बट डी यू डी वाई का वैल्यू वाई के हिसाब से चेंज होता है, राइट। सो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, टाउ एट वाई इज इक्वल टू जीरो। हमें क्या, वाई इज इक्वल टू जीरो है, वहाँ के टाउ कितना है, तो हम क्या लिखेंगे म्यू, ऐसा हम नहीं लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाई एट जीरो, मतलब म्यू कांस्टेंट ही है। सो डी बाई डी वाई एट वाई इज जीरो, राइट। मतलब टाउ वाई जीरो चाहिए तभी डी वाई वाई जीरो है, तो ऑलरेडी हमने निकाला है, देखो ये वाला वैल्यू है 12। सो म्यू का वैल्यू 0.9 और डी वाई वाई जीरो कितना है 12 1/सेकेंड। अभी देखो थोड़ा यूनिट देखो, म्यू का यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, हमने लिख लिया। 12 का यूनिट है 1/सेकेंड, 1/सेकेंड, सेकेंड कैंसिल, तो क्या रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो हमारी वैल्यू कितनी मिली 10.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिंपल। सो in this way you can easily calculate another value. Tau is equal to y is equal, tau at y is equal to 15 centimeter. So mu dy at y is equal to 15 centimeter. So mu का वैल्यू 0.9 है, इसका वैल्यू 6 है, तब निकाला पाई बाई 5.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड लास्ट वन, tau at y is equal to 30 centimeter. Mu same formula at y is equal to 30. म्यू का वैल्यू हमने निकाला डी वाई एट वाई इज इक्वल टू 30। यहाँ देखो ये वैल्यू कितना है, जीरो है, राइट। सो हम जीरो रखा, 0.9 इंटू जीरो जीरो, राइट। समझ में। सो दिस इज द सेम प्रॉब्लम। सो फॉर दिस, बट आपको याद में क्या रखना है, that this particular 3 बाउंड्री कंडीशन 1 2 3 इज एप्लीकेबल फॉर पैराबोला। अब ध्यान में रखो, मतलब 3 कांस्टेंट है तो 3 बाउंड्री कंडीशन लगेगी, दैट इज एप्लीकेबल फॉर पैराबोला। एंड इफ इट इज फर्स्ट 2, ये 2 बाउंड्री कंडीशन आपके लिए व्हेन इट इज एन डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। अगर आपको प्रॉब्लम में दिया है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज अ लीनियर, सो डेफिनेटली यू विल कंसिडर एज अ लीनियर, दैट इक्वेशन विल बी u इज इक्वल टू एल वाई प्लस एम। और वो बाउंड्री कंडीशन कितना है, ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, दो सिर्फ 2 लेने के, क्योंकि 2 वेरिएशन है। और सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर ये है ना, मतलब इसका y का ऑर्डर एक ही है, सो इट विल बी वेरी इजी। 2 unknown, 2 equations, right? So in this way you can easily calculate the particular, you can solve the particular problem. Okay, thank you. Okay, so this is another problem, that is example 1.1. It's very interesting. So there is a metal plate, right, 1.25 meter into 1.25 meter into 6 meter thick. So this length, breadth and thickness. So remember that thickness is very important, right? So this is the dimension, right? So we can easily calculate the volume of this. Sure, weighting 90 Newton, इसका weight कितना है 90 Newton है, is placed midway in the 24 mm gap between the 2 vertical plane surfaces as shown in the figure. So we'll see the figure. Suppose this is nothing but the, you can call as a figure, right? You go through this particular, मीन्स 2 प्लेट है, वर्टिकल प्लेन है, दोनों के बीच में एक प्लेट है, वो क्या क्या है इंसर्ट किया है, और ये दोनों के वर्टिकल प्लेन के बीच में क्या है ऑयल है, और ऑयल के बीच में ये प्लेट है जिसका डायमेंशन उन्होंने दिया है, ये देखो यहाँ 6 mm लिखा है, देखो। सो दैट इज जस्ट थिकनेस, मतलब दोनों वर्टिकल प्लेन के बीच का डिस्टेंस है 24 mm। सो उसके बीच में 6 mm का वो थिकनेस वाली प्लेट है, राइट। सो एंड उसमें क्या है ऑयल है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट 1। सो that is nothing but the drawing. Then what we have to calculate, the gap is filled with oil with specific gravity 0.85. So हमें पता है, so many time we have spent on properties of the fluid.
सो जो भी ऑयल है, जो भी गैप फील हुआ है वो ऑयल से हुआ है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 है और उसका डायनामिक विस्कोसिटी है 3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो हमें निकालने का है, क्या निकालने का है, फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द प्लेट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 0.15 मीटर पर सेकंड। मतलब ऑयल के अंदर जो भी प्लेट है उसको हमें निकालने का है, लेकिन कैसे निकालने का है, विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0.15 मीटर पर सेकंड से उसको अगर बाहर निकालने का है तो हमें कितना फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है ना। सो डेफिनेटली अगर उसमें ऑयल नहीं है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि देर इज़ नो एनी रेजिस्टेंस, और यू कैन कॉल इट विस्कस रेजिस्टेंस, फ्लूइड रेजिस्टेंस टू दी मोशन ऑफ द प्लेट। लेकिन अभी उसमें ऑयल है और ऑयल के अंदर वो प्लेट है, तो अगर हम उसको निकालने जाएंगे तो डेफिनेटली देर विल बी रेजिस्टेंस, राइट, देर विल बी स्ट्रेस generated, or there will be resistance to the motion of the plate because of the fluid, right. So that we have to calculate that particular force, right. So you just remember this particular drawing. Okay, yeah, so we write as a given data what, but exactly initially we'll determine, we'll draw a drawing. This is a one vertical plate. Try to understand the concept, right. And this is a second vertical plate. Remember, this is a vertical plate, not a horizontal plate, right. So when anything is vertical, so there will be exactly the force, also the weight is also acted or acting in the vertical downward directions, right. So this is very important. मतलब एक कोई चीज़ है जो हम ज़मीन से उठाना चाहते हैं, सपोज इफ इट इज़ अ रॉक or anything, we want to lift from the ground. Now the fluid is air, so air resistance is so small, but we have to there will be some force is required, some energy is required. Why it is? Because the weight of that particular object is acting downward direction and we are lifting it in the upward direction. हम उसको उठाना चाहते हैं लेकिन तभी उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन से जाता है, इसीलिए हमें कष्ट होते हैं वो उठाने के लिए। अगर 100 kg का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में उठाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा कष्ट क्यों होते हैं, लेकिन क्योंकि उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन रहता है और हम उसको अपोजिट डायरेक्शन उठाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ज़्यादा एनर्जी तो लगेगी। सिमिलरली इफ़ दैट प्लेट इज if it is in horizontal direction, no doubt it's very easy, right. जैसे कि हमें दौड़ने के लिए बोला, राइट, भागने के लिए बोला तो हम डेफिनेटली भाग सकते हैं, लेकिन हमें बोला कि आप जैसे पंछी उड़ते हैं, राइट, तो उसके हिसाब से आप पंछियों की तरह से आप क्या जाइए, ऊपर जाइए, राइट, एयर में जाइए, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। हम भाग सकते, हॉरिजॉन्टली हम दौड़ सकते, लेकिन हम वर्टिकली अपवर्ड नहीं जा सकते। वाई? देयर विल बी सम मोर रेजिस्टेंस, राइट। सो सेम थिंग इज देयर in this particular problem. So these are the two plates that you can consider fixed plate, और इस दोनों के बीच में एक प्लेट है, समझ में रहा है, ये प्लेट है। सो इस प्लेट का जो डायमेंशंस तो उन्होंने दिया है, राइट। सो प्लेट का डायमेंशंस है, सो हम यहाँ भी लिख देते हैं कि डायमेंशन ऑफ प्लेट, so 1.25 meter into 1.25 meter into 6 mm, right. So this important thing is, this is the thickness, we will calculate as a thickness, right, that is important, the length and width. So जो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है तो ये इसका क्या है, थिकनेस है। आप ऐसा भी ले सकते हैं कि वो आप लेंथ दर विड्थ के हिसाब से लेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, तो आपको जो भी दिखाई देगा वो अंदर है, राइट। तो दैट इज थिकनेस वी सी, एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट इट इज़ 24 mm,
राइट, समझ में आ रहा है ना। सो और ये इफ इट एंड इट इज़ फील्ड विथ, ये शायद पूरा फिलअप है या नहीं है वो तो पता नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि सब पूरा फिल है, राइट। ऐसा उन्होंने दिया है क्या, कंप्लीटली फिल्ड। ओके, सो लेट इट बी, उठाने के लिए थोड़ी जगह हम रख देते हैं। सो इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद ऑयल, राइट। तो हमें क्या निकालने का है कि इसका भी उन्होंने दिया है दैट म्यू तो दिया है शायद, म्यू का वैल्यू दिया है दैट इज 370 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, राइट। और क्या दिया है, जो हमें ये इसको उठाने का है, राइट, हमें ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए वो हमें निकालने का है। बट इसका वेलोसिटी तो दिया है उन्होंने कि इफ़ दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी 0.15 मीटर पर सेकंड। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें उठाने का है, लेकिन उठाने की वजह से वो बाहर आना चाहिए, उसकी वेलोसिटी है 0.15 कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट। सो ये दिया है, हम निकाल देते हैं कि एरिया ऑफ द प्लेट क्या है। एरिया ऑफ द प्लेट क्या रहेगा, मतलब एरिया ऑफ द प्लेट इसका मतलब दिस सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट विच इज एक्सपोज टू द ऑयल। ऑयल की मतलब ये दिखाई दे रहा है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये वाला थिकनेस रहेगा, ये वाला थिकनेस, और ये इसका विड्थ और ये लेंथ रहेगा। तो ये ऐसा नहीं है, तो ये कैसा रहेगा, ऐसा है, राइट। हम देख सकते हैं ये ऐसा है, राइट। सो ऑयल इधर है, इधर ऑयल है, इधर ऑयल है, मतलब दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज एक्सपोज टू द ऑयल। तो इसका एरिया क्या रहेगा, इधर, इधर भी ऑयल है और ये दूसरी साइड में भी ऑयल है। तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन मीन्स ऑयल विल एक्सर्ट रेजिस्टेंस टू दिस पर्टिकुलर एरिया। तो इसका एरिया क्या रहेगा, थिकनेस को भूल जाने का और दूसरा एरिया आप निकाल सकते रहे। सो एरिया ऑफ द प्लेट रहेगा 1.25 इंटू 1.25। सो इसका वैल्यू मिलेगा आपको, शायद मैं लिख देता हूँ 25 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मिला आपको एरिया, राइट। अभी इम्पोर्टेंट है कि अगर ये 6 mm है तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, और ये डिस्टेंस कितना रहेगा। ये सेंटर में है तो आप डेफिनेटली 24 माइनस 6 आप निकालेंगे। सो हम इसको बोल देते हैं T1 और इसको बोल देते हैं T2। सो T1 कितना रहेगा और T2 कितना रहेगा, आप देखो 24 माइनस 6 कितना रहेगा, 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9 mm। T1 भी 9 mm रहेगा और T2 भी 9 mm ही रहेगा, राइट। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट वी रिक्वायर्ड। सो राइट, सो डेफिनेटली अगर हम ये ड्राइंग ऐसे लेते हैं, राइट, इफ़ यू टेक दिस पर्टिकुलर ड्राइंग एज इट इज़ देन दिस इज़ नथिंग बट व्हाट, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, दोनों के बीच में ऑयल है। इधर क्या है, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, दोनों के बीच में ऑयल है। तो ये क्या रहेगा, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का इक्वेशन ही हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। और यहाँ से उसी हिसाब से, क्योंकि हमने देखा है 2 प्लेट के बीच में ऑयल है, 2 प्लेट के बीच में ऑयल है। अगर ऊपर वाला ऑयल नहीं है तो एक ही बार आपको इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। अभी क्या है, 2 है ना, ये प्लेट, ये और ये एरिया ऑयल है, तो यहाँ हम उसको अप्लाई करेंगे, ये दूसरा ऑयल है, यहाँ हम अप्लाई करेंगे। इट इज आई कंसिडर एज मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल, राइट। सो सेम थिंग, मतलब फोर्स exerted by this oil over this particular surface you can calculate by NLV, Newton law of viscosity, on this side, left hand side. On the right hand side again same thing is there, force exerted by this oil on this particular surface, sure. So ये resistance generated by the oil आपको मिल जाएगा, राइट। और दूसरा क्या है, मतलब
हम इसको ऊपर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली देर विल बी रेजिस्टेंस जनरेटेड बाय द ऑयल ऑन द सरफेस, दो साइड में रहेगा, हम निकाल लिया। और दूसरा है कि इसका वेट है, जो इसका वेट है वो क्या रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो उसका वेट तो दिन दिया है, सो वेट इट इज गिवन, दैट इज वेट इन 90 न्यूटन, दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब इसका वेट नीचे जा रहा है, तो अगर हमको इसको उठाने का है तो अपोजिट डायरेक्शन हमको फोर्स चाहिए, तो वो भी फोर्स इसमें ऐड होगा। मतलब ये 0.15 वेलोसिटी से अगर मूव होना चाहता है तो इसका ये रेजिस्टेंस हमें ओवरकम करना पड़ेगा, और उसका वेट का जो भी रेजिस्टेंस है उसको भी हमें ओवरकम करना पड़ेगा, राइट। सो ये दोनों चीज़ें आपको कंसिडर करनी होगी। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो डेफिनेटली देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम ऑफ द वेट विल बी नेग्लिजिबल एट समवॉट, राइट। लेकिन वर्टिकल है और उन्होंने प्रॉब्लम में वेट दिया है तो आपको वेट कंसिडर करना है। अगर वेट नहीं दिया है तो डोंट कंसिडर दिस पर्टिकुलर वेट, कंसिडर इट एज अ समवॉट नेग्लिजिबल, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट। लेकिन अभी वेट तो दिया है तो विल कंसिडर दिस, राइट। सो ओके, सो वेट तो दिया है, और क्या दिया है उन्होंने, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, दैट इज 0.85, राइट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल इट इज़ दिया है। तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी शायद दी है तो डेफिनेटली हम क्या निकालेंगे उसके हिसाब से, हमें क्या चाहिए, ग्रेविटी। सो हम इसकी डेंसिटी बाय यूजिंग दिस हम डेफिनेटली उसको निकाल सकते हैं, राइट। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है तो डेफिनेटली उन्होंने क्या दिया, वेट दिया है, तो हम डेफिनेटली क्या निकालेंगे, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी is equal to weight divided by वॉल्यूम, राइट। ये रहेगा वेट डेंसिटी का फॉर्मूला, आप याद में रखो। और हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से वेट डेंसिटी कैसे निकालेंगे, सो विल राइटिंग, आई एम राइटिंग हियर वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, वेट डेंसिटी ऑफ ऑयल जो हमें दिया है डिवाइडेड बाय weight density of standard fluid, so that it is nothing but water, right. So we'll be considering this. Then SG दिया 0.85, weight density of oil हमें चाहिए, weight density ऑयल, और स्टैंडर्ड फ्लूइड का कितना रहता है, 9.81 इंटू 1000, क्योंकि वेट डेंसिटी ऑलवेज इट इज़ कैलकुलेटेड एज रो जी, राइट। ये आप याद में रखो। सो वेट डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो हम लिखते थे, वेट डेंसिटी का मतलब है वेट डेंसिटी, कंफ्यूज मत होइए, वेट डेंसिटी ऑयल इज इक्वल टू 0.85 इंटू 9810, सो न्यूटन पर मीटर क्यूब, आप ऐसा लिख कर यहाँ रख दीजिए, राइट। सो ये है उसका ये वैल्यू, राइट। सो हमने जो दिया है उस हिसाब से हमने निकाला, नो डाउट। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ओके, वेलोसिटी ऑफ द प्लेट इट इज़ गिवन, सो वी कैन राइट एट द 0.15 मीटर पर सेकेंड, राइट। और डायनामिक विस्कोसिटी तो हमने लिखी है, राइट। नाउ वी मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो हम क्या लिखते हैं कि इक्वेशन, टोटल फोर्स required to lift the plate in vertical direction. So this is very important, vertical direction at velocity of 0.15 meter per second
इज इक्वल टू, राइट, इज इक्वल टू क्या, कितना फोर्स लगेगा? सो डेफिनेटली टू ओवरकम समथिंग दैट इज ड्रैग फोर्स, we have to calculate the drag force, or it is called as a viscous resistance. कितना फोर्स लगेगा? विस्कस रेजिस्टेंस, मतलब जो भी ऑयल इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस फोर्स, सो दैट इज नथिंग बट द ड्रैग फोर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, राइट. सो दिस फोर्स डी एफ यू कैन कंसिडर, प्लस क्या रहेगा? एक दूसरी चीज़, इसका वेट जो हम बोल देते हैं, इसका वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. अगर उसको उठाने का है तो डेफिनेटली हमें वो निकालना पड़ेगा. सो डेफिनेटली हम शायद बायोंसी कंसेप्ट तो देखा है, जब भी हम किसी राइट एनी सॉलिड कंपोनेंट इफ यू पुट इनटू ऑयल और एनीथिंग वाटर, राइट, कोई चीज़ हम वाटर में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो नीचे नहीं जाते, राइट, वो ऊपर आती है, राइट. समझ में आ रहा है ना? मतलब हम देखते हैं हमारा यहाँ का वेट काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन हम जब वाटर में जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा वेट क्या रहता है, कम रहता है. वो बॉयंसी फोर्स है. मतलब कोई भी चीज़ वाटर के अंदर नहीं जाती है, राइट. अगर हमने प्लास्टिक कोई चीज़ अगर 100 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो हमें एयर में उठाने का है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन हम वाटर में उसको ईजी तरह से उठा सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बायंसी, मतलब वाटर उस वेट को उठाने के लिए मदद करते हैं, राइट. मतलब कोई चीज़ वाटर के अंदर नहीं जाती है, वो बाहर आती है, राइट. सो बिकॉज ऑफ द बायंसी मीन्स फ्लूइड इज एक्सर्टिंग अ बायंसी फोर्स विच इज लिफ्टिंग द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. मतलब अगर ये प्लेट हम अगर वाटर ऑयल में अगर हम डाल दिए हैं तो डेफिनेटली देयर इज सम बायंसी फोर्स इज एक्सर्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. जो ऑयल के हिसाब से वो बायंसी फोर्स है, उसको इसको क्या करेगा, वो उठाने की कोशिश करेगा, राइट, स्लाइड. तो इसके लिए हम क्या लिखते थे इधर? सो ड्रैग फोर्स प्लस सम वर्टिकल डायरेक्शन वेट, नहीं तो इसको हम लिखेंगे इफेक्टिव वेट. इफेक्टिव वेट ऑफ द प्लेट. मतलब इफेक्टिव वेट मतलब क्या है, इस कि बायंसी को कंसिडर करके जो भी वेट रहता है वो उसको बोलते हैं इफेक्टिव वेट, हम बोल देंगे, राइट. सो इफेक्टिव वेट मतलब, तो हम इधर लिख देते. सो ड्रैग फोर्स यहाँ तो दिया है उन्होंने, तो हम लिख देते टोटल फोर्स. सो ड्रैग फोर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड प्लस ड्रैग फोर्स ऑन राइट हैंड साइड, राइट. प्लस इफेक्टिव वेट का मतलब क्या है कि हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ प्लेट which is acting in the downward direction, right, प्लस ये इफेक्टिव वेट का मतलब ये इसका प्लेट का वेट रहेगा प्लस जो भी रहेगा क्या, वो प्लस अंदर आपको उसके लेंगे अपवर्ड थ्रस्ट, or you can call as a buoyant force. So you might have learned this. We will see there is one module, buoyant force in the, this is in the upward direction. मतलब हम क्या ले रहे हैं, ये सब निगेटिव मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स है, राइट. सो हम डेफिनेटली अगर हम उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वाले फोर्स है तो नीचे आएंगे, वो उसको रजिस्ट करेंगे, ये वाला फोर्स रजिस्ट करेंगे, लेकिन ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया है, राइट. सो दिस इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा फोर्स, मतलब ये नेगेटिव ले रहे हैं, राइट. समझ में आ रहा है ना? मतलब वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ड्रैग फोर्स अगर हम इसको ऐसा उठाना चाहते हैं, राइट, इन दिस डायरेक्शन, मतलब हम ये इसको इस डायरेक्शन में उठाना चाहते हैं, लेकिन हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, वेट भी इस डायरेक्शन, लेकिन बायंसी फोर्स ऐसे ही रहेगा. सो इसके लिए हमने उसको नेगेटिव रखा है, राइट. सो ये फॉर्मूला कैसे होगा अभी देखो, डी एफ ऑफ एल प्लस डी एफ ऑफ आर प्लस ये वेट ऑफ प्लेट
minus UP, that is upward thrust, or you can call it the buoyancy force, that is BF. You can write it as like this. समझ में आ रहा है ना? तो आप ऐसे ही रखो. You can give it the name as equation number 1. So अब भी एक निकालेंगे exactly what is the value of drag force. So हम drag force की वैल्यू निकाल दें. DF at left hand side, मतलब समझ में रहा है ना? DF at left hand side, दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड. अब देखो ये एक प्लेट है, ये मूविंग प्लेट है, इसका वेलोसिटी तो उन्होंने दिया है, राइट. इसका वेलोसिटी दिया है, इसका वेलोसिटी 0 है, तो डी हमको पता है. डी वाई कितना है? T1 है. तो हम डेफिनेटली वी कैन यूज़ द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी. तो हम इधर यूज़ कर दे ड्रैग फोर्स at left hand side we can calculate by using Newton law. So we know this tau is equal to mu du by dy. लेकिन टाउ का वैल्यू क्या रहेगा? हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे. टाउ मतलब f डिवाइडेड बाय a mu du by dy, और ये फोर्स मतलब ये रहेगा df, राइट. सो हमें f चाहिए, तो हम mu du by dy इंटू ए, ये रहेगा एग्जैक्ट फोर्स. सो अगर हम DF एट लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या रहेगा? म्यू तो कांस्टेंट रहेगा, म्यू विल नॉट चेंज. du by dy at left hand side into area. Okay, so this is nothing but the left hand area, right? So we'll go through this and we just put the value of everything else here. We calculate the area and we will get the answer. So I will be calculating, right? So 0.15 divided by 9 into 10 raised to minus 3 into 1.5625 into 3. So it will be 78.125. So what is the unit? Will be in Newton, no questions. So df at L is equal to, we are getting this. So we'll go in the right hand side, right? मतलब okay, so this is on the right hand side, right? Mu du by dy at right and area at the right. So there is no any change in the values. 3.0 into 0.15 divided by 9 into 10 raised to minus 3 into 1.5625. So same value will get 78.125 Newton. So df at right hand side, right? So this is nothing but the drag force on the left hand side plus right hand side. Now we'll move for the effective weight. How to calculate the effective weight, right? So in this way we know weight of the plate is 90 Newton, but now we have to calculate the upward thrust. What is upward thrust or buoyancy force? So that we will determine. So that upward thrust, we are just writing here. Upward thrust or buoyant force. So is nothing but what? Okay, is nothing but what? Upward thrust or buoyancy force, right? So this can be calculated as weight of, मतलब जितना भी प्लेट अंदर है, मतलब
मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको पता है, जितनी प्लेट अंदर है तो उस प्लेट का जो भी वॉल्यूम है उतना ही वेट ऑफ फ्लूइड कैन बी क्या होगा, डिस्प्लेस होगा. सो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, राइट. सो ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, राइट. दैट वेट, राइट. सो this weight of fluid it can be displaced, right. So this how we can calculate weight कैसे निकालते हैं, जैसे weight density हमको पता है, weight density is equal to weight divided by volume. तो weight कैसे निकालेंगे, weight density into volume of fluid displaced, right. सो डेफिनेटली व्हाट इज़ वेट डेंसिटी, तो हमने उसको निकाला है, राइट. वेट डेंसिटी हमने देखो इधर निकाला है, राइट. तो हम लिख रहे हैं 0.85 इंटू 9810 इंटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, मतलब कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जितना प्लेट का वॉल्यूम है. तो कैसे लिखेंगे 1.25 इंटू 1.25 इंटू इसका से थिकनेस है 6 mm, मतलब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻3. तो अगर ये हम कैलकुलेट कर देते हैं तो उसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा, हम देखते हैं, राइट. 1.25 इंटू 1.25 इंटू 6 इंटू 10⁻³ इंटू 9810 इंटू 0.85, सॉरी 0.85, तो कितना मिलेगा 78.17 न्यूटन. सो दिस विल बी एक्टिंग इन द upward direction. So always remember opposite to the weight. So this is force, right. अगर ये सब मिला है, मतलब हमने बायसी फोर्स मिला है, हमने दो फोर्स मिले, तो ये शायद हम इधर उसको पुट करेंगे, राइट. इस पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, मैं थोड़ा इधर ही लिख देता हूँ, कुछ अलग ड्राइंग है. जस्ट वेट, right. So in this what we can write, total force required to lift the plate, कितना रहेगा, टोटल फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द प्लेट, हम जो भी वैल्यू है हम उसको डाल देंगे. सो दैट इज नथिंग बट 78.125 प्लस 78.125, ये होगा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, प्लस वेट कितना रहेगा 90 माइनस जो भी इफेक्टिव वेट है वो कितने 78.17. समझ में. तो अगर हम इसको निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा, हम देखो 78.125 प्लस 78.125 प्लस 90 माइनस 78.17, तो आपको वैल्यू मिलेगी 168.08 न्यूटन. मतलब इतना फोर्स आपको क्या लगेगा, लिफ्ट करने के लिए लग सकता है, राइट. समझ में आया कैसे निकाला. सो दिस इज नथिंग बट वेरी सिंपल. मतलब ये वाला प्लेट अगर आपको मूव करने का है तो व्हाट वी कंसिडर, ड्रैग फोर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्लस वेट, right, and minus because it is in upward direction, right. So this is nothing but
UP upward force और buoyancy force which is acting in the upward direction. So वो निकाला, माइनस किया, अब in the end what value you are getting was 8.08 Newton, right? Thank you.